Good morning, viewers. And today at Medi Chit Chat, we have a very renowned orthopedic surgeon, Dr. Sunil Shetty, sir. Thank you so much, sir, for giving us little time to learn about knee replacement today. So, we are going to speak a lot about knee problems and knee replacement surgeries. But before that, I want you to introduce yourself. Yeah, I am Dr. Sunil Shetty, an orthopedic surgeon. I have done my graduation at KMC Mangalore, it's Manipal University, and I did my post-graduation at JJMC in Davangere. After completing my post-graduation, I worked under Dr. Bojaraj as a spine At Leelavati. at Hinduja Hospital. Okay. And Dr. Sanjay Agarwala, from where I learned a lot about knee replacements and other replacement surgeries. It's been, sir, how many years now, sir, that you're practicing? 22. Long time, that's like a lot of experience in knee replacement surgeries. तो सर हम ये जानना चाहते थे कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज किन पेशेंट्स को लगती है? Normally, ये surgeries basically are done on patients who have a painful knee. अच्छा. Of course, you have painful knee in septic situation also. These are excluded. Otherwise, it is basically degenerative knees that require these surgeries. क्योंकि नी एक्चुअली नी पेन तो बहुत कॉमन है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आप डिसाइड करते हैं कि अब ये नी जो है वो कंजर्वेटिव मेथड से नहीं हो पाएगा ठीक, इसको सर्जरी करना सही रहेगा? One is age. अच्छा. Second is we always try conservative methods before embarking on surgery. Okay. In the form of analgesics, physiotherapy, good quadriceps exercise. If the patient keeps coming back to you again and again, and if the pain is not relieved, Okay. even after she takes a lot of painkillers and he or she has to take a lot of painkillers for a large number of time, अच्छा. so that is where we decide that probably this patient will do well with replacement surgery. सर मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नी पेन भी काफ़ी तरह का होता है ना. कभी कभी नी पेन होता है व्हेन वी आर गेटिंग डाउन ऑफ द स्टेयर्स, सिवियर पेन, या कभी कभी इट इज़ मोर ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस पेन. तो ये जो पेशेंट इस तरह के होते हैं वो किस तरह का पेन, मतलब उनको कोई दिन का वेरिएशन होता है या कोई पैटर्न का वेरिएशन होता है पेन में? Osteoarthritis probably does not follow a set pattern. Achha. Every patient comes with their own complaint. Okay. Normally, if you have patients who have pain while going down the stairs, probably you are dealing with patellofemoral arthritis. अच्छा. Okay. So, वाटी घिस जाता है, Correct. common हाँ. ये, and irrespective of तो मतलब नी पेन अगर है तो इट्स बेटर टू विजिट योर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर एंड ही विल डिसाइड कि इस पेन को कैसे ट्रीट करना चाहिए. ऑलराइट सर, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो हैं वो नॉर्मली कितने वैरायटी की होती हैं एक जनरल पर्सन के लिए? कभी कभी सुनते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, कभी कभी टोटल नी रिप्लेसमेंट. तो एक जनरल एवरेज व्यूअर कैसे समझे कि पार्शियल में क्या कर रहे हैं और टोटल में क्या कर रहे हैं? Normally, if you talk about the knee, it's basically divided into 3 compartments. अच्छा सर, यहाँ एक मॉडल भी है ना, हम उसमें से समझ लेंगे. हाँ. 3 का मतलब है एक वाटी रहता है आगे. अच्छा. Then you have 2 compartment, that is the medial and lateral compartment in the over the tibia. करेक्ट. Now when we talk about unicompartmental knee और जो कहते हैं ना आधा knee replace किया है, तो that you are only doing a medial replacement. That means medial side का joint usually देखा गया है कि ज़्यादा घिस गया है, तो उसको तो जिस साइड का घिसा है बस उतना ही चेंज करते हैं उसमें. अच्छा. And as far as total is, we replace the whole knee. और सर ये सर्जरीज किस एज ग्रुप में ज़्यादा आप लोग? Usually above 65. अच्छा, उसके पहले. ओके. उससे पहले भी होता है. हाँ. There are very youngsters जिनके फ्रैक्चर होते हैं और उनका जॉइंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, and they keep coming and they want relief of pain. अच्छा. तो there are rare cases where जल्दी भी करते हैं, but most of the time the age group is around 60-65. Yeah, 65 and above. और ये सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है पेशेंट को रिकवर होने में?
नहीं, normally he is walking the next day, अच्छा, and usually some amount of pain is there, little bit of, but of course there's a individual variation. Some patients do very well, second, third day they are walking comfortable. Some take some time, and I think by the end of suture removal they are walking. मतलब 10 to 15 डेज में तो काफ़ी रिलीफ हो जाता है. तीसरे दिन में they are climbing stairs. अच्छा, it is that effective. Yeah. और इसमें सर बाद में क्या पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी या Post-op इस तरह का? physiotherapy is very essential. डॉक्टर सुनील, हमको ये मॉडल के बारे में भी ज़रा बताएंगे क्या? हाँ, लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि किस स्टेज में किया जाता है. हाँ. नॉर्मल आप ये देखते जाएंगे कि ये नॉर्मल नहीं है आपका, यहाँ आपका गद्दा पूरा भरा हुआ है. जैसे ही उम्र बढ़ती है थोड़ा सा वेयर एंड टेयर या जो घिसावट कहते हैं हम, वो स्टार्ट होता है. और जब ये मॉडरेट टू सीवियर में आता है, आप देखेंगे ये जो लाल कलर का है, यहाँ आपका कार्टिलेज पूरा निकल चुका रहता है और आपका बोन एक्सपोज्ड हो रहता है. तो इसको सबकॉन्ड्रल बोन कहते हैं. ये बहुत पेनफुल है. अच्छा. और जब ये स्टेज सीवियर स्टेज में आता है, काफी आप देखेंगे कि काफी जगहों पर सबकॉन्ड्रल बोन एक्सपोज्ड है. इसका मतलब है आपका पेन बहुत ज्यादा है. इस स्टेज पे शायद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सहन कर तो पाते हैं. जैसा आपने कहा कि पेन भी बढ़ जाएगा और एक्सरे में भी जॉइंट दिखने स्पेस लगेंगे. कम होगा और अच्छा. एक्सरे में भी दिखेगा. थैंक यू सो मच. थैंक्स सर. मुझे ये भी जानना था कि जो आजकल पेशेंट्स कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेते रहते हैं हमेशा, इससे सच में नी जॉइंट को कोई प्रोटेक्शन मिलता है क्या? नहीं, as far as pain is concerned, calcium does not offer any protection. It will only strengthen the bone. ओके. But pain-wise, there is no role of calcium. वो तो जो सिम्टोमेटिक हैं, अगर कोई पर्सन असिम्टोमेटिक है और वो आगे चल के उसको नी जॉइंट में परेशानी ना हो, तो इसके लिए वो कुछ कैल्शियम हड्डी सप्लीमेंटेशन. शायद थोड़ा मजबूत होगा. अच्छा. बट पेन में कोई सफर नहीं होगा. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि वो क्या प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल पर्सन करे कि उसको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े या लेट पड़े कम से कम? वेट लॉस अच्छा. एंड एक्सरसाइजेस. और किस तरह के स्पेशल एक्सरसाइजेस आप रेकमेंड करते हैं सर? जैसे मॉर्निंग वॉक्स अच्छा. एंड क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. ओके. ये तो बहुत मायने रखते बहुत हैं. ही. डॉक्टर सुनील, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये इंडियन इम्प्लांट लगाएं या फॉरेन का लगाएं, या इसमें कोई एक बेनिफिशियल है, या आपका इसके बारे में क्या क्या राय है आपकी? नहीं, आजकल जो इंडियन इम्प्लांट्स आते हैं दे आर क्वाइट गुड. अच्छा. And I think newer companies are coming with good implants, Indian implants also. I think the doctor and patient should sit and decide which implant is best for the patient. आपके अपने प्रैक्टिस में क्या कोई क्लियर बेनिफिट है क्या दोनों में? आपको ऐसा लगता है कि अगर फिनेंशियल कंस्ट्रेंट ना हो पेशेंट को, तो आपका पर्सनल चॉइस कौन सा रहता है? नहीं, यूजुअली क्या रहता है, व्हेन वी स्टार्टेड आवर प्रैक्टिस वी डिडंट हैव लॉट ऑफ इंडियन इम्प्लांट्स. अच्छा. तो वी आर यूज्ड टू ऑपरेटिंग वन इम्प्लांट. Correct. तो यूजर फ्रेंडली हो जाते हैं, देन वी स्टिक टू दैट. राइट. So it's more of a bias because you've been using it for some time. That's it. हाँ. Suddenly you have a new set of implants to play and you probably a little uncomfortable there. Correct. So bias wise we are more biased towards the Foreign ones currently, but Indians are also very fine. So they actually patient can discuss at length with the orthopedic surgeon and then take a call about the same. Okay. Thank you so much. और सर, ये जो इम्प्लांट्स हैं, इसको करने के बाद क्या पेशेंट का MRI हो सकता है क्या? मतलब ऐसा कुछ कंपैटिबिलिटी का इशू आता है क्या? Usually there are centers now where they say that MRI after 3 months of the surgery can be done. Okay. But still there are some MRI centers which refuse to take patients with implants. So but there is a facility where it can be done. They can cover this and. और मुझे ये भी जानना था सर कि आजकल तो गवर्नमेंट के इतने सारे योजना हैं और हमारे पेशेंट्स इतना बेनिफिट करते हैं उससे, तो क्या ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कुछ योजना में भी कवर होती है क्या? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये योजना में भी कवर होता है. ओके. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब वेरी गुड थिंग कि अभी पेशेंट को पेन में इसलिए नहीं रहना क्योंकि उसकी सर्जरी जो है वो कवर नहीं हो पाएगी. तो दिस इज सच अ बेनिफिट टू द पेशेंट्स. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो डॉक्टर सुनील, हमें ये भी जानना था कि क्या ये दोनों एक साथ दोनों नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है क्या, एंड उसके कोई बेनिफिट्स हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
नहीं, दोनों एक साथ कर सकते हैं। अच्छा। बेनिफिट्स ये है कि एक ही एनेस्थीसिया में एक ही सिटिंग में दोनों हो जाता है, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका टाइम बचता है। और बहुत से टाइम ये होता है कि चिल्ड्रन अब्रॉड दे हैव कम फॉर द नी सर्जरी, अगर हम स्टेज करेंगे तो देयर स्टे विल बी लॉन्गर, तो दे आल्सो इंसिस्ट कि अगर एक ही साथ हो जाए तो इजी हो जाएगा। ओके। बट ऑफ कोर्स इट एनेस्थेटिस्ट डिसाइड अगर वो झेल पाएगा कि नहीं। वो नॉर्मली सर एक सर्जरी को, एक नी रिप्लेसमेंट को अगर टोटल हम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है? एक घंटा, अराउंड 1 आवर। ओके। और मुझे ये जानना था कि क्या इसको कभी रिपीट भी करना पड़ता है या एक बार हमने सर्जरी कर दिया तो अभी नी जॉइंट जो है वो परमानेंटली नॉर्मली वी आर बेसिकली डूइंग इट अराउंड 65 एंड अबव। अच्छा। तो यूजुअली री रिप्लेसमेंट का जरूरत नहीं पड़ता यूजुअली, बट देयर आर इंस्टेंसेस के लूजनिंग हो गया, अच्छा, इन्फेक्शन आ गया, तो इनमें रिवीजन करना पड़ता है। सर आपके पर्सनल इतने साल के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल सर्जरी अच्छी है, लोगों को करना चाहिए? या अधिकतर जगह पे देखा जाता है कि लोग डिले करते जाते हैं, अभी नहीं करेंगे, हम लोग बाद में देखते हैं, या फिर कंजर्वेटिव मेथड्स करते रहते हैं। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और एडवाइस क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से इट्स अ बोन फॉर अ पेनफुल नी। अच्छा, मतलब सोचना नहीं है अगर पेन है और आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। व्हाई लिव इन सो मच पेन जस्ट बिकॉज समवन टेल्स यू कि नहीं कराना है। मतलब आपका डिसीजन होना चाहिए। करेक्ट। आपका पेन है, यू आर बेयरिंग इट, यू शुड डिसाइड वेदर यू शुड गेट रिलीव्ड ऑफ दिस पेन। राइट, बट इन योर प्रैक्टिस यू फील दैट इट इज अ वेरी इफेक्टिव yes, सर्जरी। yes, very in the right indicated patient it's a very effective way. सर इसमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे हैं? Complication, one of the most dreaded is infection. ओके। That is one of the major, हमको भी डर लगता है, डर लगता बट वो है तो कि सर infect- ऑर्थोपेडिक के सारे केसेस के साथ है, आप लोग के इतना साथ। प्रिकॉशन लेते हैं कि किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए ऐसा। और इसमें क्या फेलियर के भी चांसेस होते हैं? माल अलाइनमेंट थोड़ा सा चांसेस है, ओके। but with the newer and newer technologies, newer gadgets, I think we have reduced all those things. ओके। एंड सर ऐसा भी कुछ प्रिकॉशन है जिनका नी सर्जरी हो गया है तो वो अपने रिप्लेस नी का केयर कैसे इफेक्टिवली ले सकते हैं, इसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी चाहिए। एक exercise he has to continue, he or she has to continue the exercise. Normally all these knees, most of the knees are designed where we tell them to avoid bending for more than 90. स्क्वाटिंग नहीं कर सकते, अच्छा। नीचे नहीं बैठ सकते, तो मतलब वेस्टर्न काइंड ऑफ टॉयलेट वगैरह यूज करना बेटर वेस्टर्न है, टॉयलेट, एकदम स्क्वाट नहीं करें, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो ये थोड़े कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। और सर इसमें जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं इसमें क्या अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हम यूज़ करते हैं एज अ? हाँ, अभी तो काफी वैरायटी है, अभी तो डिजाइन ऐसा है वेयर यू कैन फ्लेक्स द नी मोर। ओके, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल है। ओके। बट इट्स लाइक वन ऑफ माय प्रोफेसर्स हैं कि आप गाड़ी चलाते हो, आपका स्पीडोमीटर दिखाता है कि 180 200 तक जाता है, बट गाड़ी आप इतना भगाते नहीं हो। So if you want to take care of the knee, तो 90 या 100 should be गुड इनफ। तो आप जितना ज़्यादा केयर लेंगे आपका नी उतना ज़्यादा दिन तक लास्ट करेगा। राइट सर, एक ये ऑल्दो आउट ऑफ द थिंग है, बट एक एवरेज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को एवरेज एक नॉर्मल कॉस्ट रफली कितना आता होगा? एक अप्रॉक्सीमेटली, हर पेशेंट अलग है, सर्जिकल कॉस्ट should be around 2.2 to 2.5. ओके, रफली मतलब इतना तो, और ये तो इंश्योरेंस में भी कवर होता है ये ना सर? इंश्योरेंस में कवर होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमको इतना सारा कुछ बताया। इसके अलावा अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से हेल्थ के लिए या नी के स्पेशल केयर के लिए कुछ बताना चाहें तो? नहीं, डेली वॉक्स, गुड फिजियोथेरेपी। सर वॉक्स आप कह रहे हैं तो उन अंदाज से कितना वॉक करना सही है? ये तो पेशेंट डिसाइड करेगा, एवरीवन कैन नॉट वॉक। अगर मैं पेशेंट को कहता हूँ कि आप 1 किलोमीटर चलो या 10 किलोमीटर चलो, करेक्ट, तो इट इज हिज पेन। आपको जब लगता है कि पेन हो रहा है तो रुक जाइए, अच्छा। बट एटलीस्ट एफर्ट शुड बी देयर। ओके, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू टेल? नहीं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर नी एंड सी दैट यू कीप योर नी मोबाइल. Okay, and do not ignore pain. Always visit your orthopedic. Just don't listen to people when your knee is very painful. सर एक क्वेश्चन रह गया था, इसके लिए मुझको बोलियो कि आपका ये फाइनल डिसीजन जो होता है कि इसको नी रिप्लेसमेंट लगने वाला है, ये किस टेस्ट पे डिपेंड करता है? मतलब आप MRI या CT पे डिसाइड करते हैं या क्लिनिकल ही रहता है ये डिसीजन? क्लिनिकल, एक्सरे
and most important, patient's pain. ओके ओके Patient decides actually, हाँ. doctor does not decide. अच्छा, सो इट्स वन ऑफ द सर्जरीज जहाँ पे पेशेंट का Yeah. पेन विल डिसाइड कि कितना अगर अर्जेंट उनका है. पेन टॉलरेबिलिटी उनको चलने नहीं दे रहा है तो आई डोंट थिंक वी शुड वेट. वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील. इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत बेनिफिट होगा. उनको एक बेसिक नॉलेज मिलेगा नी रिप्लेसमेंट और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड अदर थिंग्स के बारे में. थैंक यू सो मच. इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.